Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the last topic of a given unit that is called as haloarenes and haloalkanes, or it is also called as the halogen derivatives. You know, halogen derivatives is what here? It is the hydrocarbon. If any hydrocarbon in which hydrogen is replaced by a halogen atom, so it is any compound like that of aliphatic or aromatic compound in which the hydrogen is replaced by any halogen atom, so the compound is formed called as the haloalkanes or haloarenes, depend upon the compound. If aliphatic compound in which the hydrogen replaced by the halogen, so it is called as the haloalkanes, whereas the aromatic compound in which the hydrogen is replaced by any halogen atom, so it is called as the what here haloarenes. ये जो का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसका नेम है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, इट्स यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट. ठीक है, इसमें से लास्ट 6 नंबर का जो केमिकल है, जो इसका जो एग्जाम्पल है किसका, पॉलीहेलोजन कंपाउंड का, वो देख रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, सो वी टेक द एग्जांपल और इट्स व्हाट यूजेस and as well as environmental effect of a polyhalogen compound. So we started here today the 6th point, the dichlorodiaphenyl trichloromethane. It is a polyhalogen compound. The name is called as dichlorodiaphenyl trichloromethane. It means it contains a 5Cl, tri-Cl, trichloro is 3Cl, this 2, 3 plus 2, 5Cl. And 2 benzene is called as diphenyl, and what here 1 carbon is called as the methane. What here methane, or also write here the dichlorodiaphenyl. What here dichlorodiaphenyl ethane. ठीक है, it's not a methane. We take it 2 carbon, so it is called as what here ethane. ठीक है, now we take here the first the uses. So in a uses we take the first here the what nature of a given chemical or given molecular formula of the compound. तो पहले हम लोग जब भी हमने स्टार्ट किया इसका यूजेस और इफेक्ट, तो पहले हमने क्या देखा, नेचर देखा. तो पहले हम देखेंगे इसका नेचर. DDT का बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म DDT. So it is colorless, tasteless and odorless crystalline compound. जिसका जो कलर है वो लाइक ऑफ वाटर होता है, कलरलेस, टेस्टलेस होता है, वाटर के साथ और odorless होता है. लेकिन स्पेशल क्या है इसका, इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड लाइक दैट ऑफ व्हाट हियर, लाइक दैट ऑफ द व्हाट आइडोफॉर्म एंड द क्लोरोफॉर्म. ठीक है, सो इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और कंपाउंड एंड इट्स हैव द स्ट्रक्चर formula is 2 benzene at which the 1 C attached to this benzene, remaining this C attached to this benzene, and 3 Cl attached to the carbon first and second. Clear? So it is a name is called as dichloro. This dichloro diphenyl this and this indicate a trichloroethane. T indicate what here, trichloroethane. It's a structure of DDT. D means dichloro, this D is called as diphenyl, 2 phenyl group इसमें दिखाई दे रहा है आपको, और this T indicate trichloroethane. This one और carbon 2 carbons called as ethane. So dichlorodiaphenyl trichloroethane इसका नेम है. ठीक है, now we take the first who discovered this DDT compound. The first of all the DDT compound is discovered by a scientist in 1873 to in 1931 by Paul Paul and Muller MULLER is the name of scientist Paul and Muller. First time discovered a DDT. It is act as insecticide. It is act as insecticide, यानी इंसेक्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, इंसेक्टिसाइड. आपको पता है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट इज डिस्कवर्ड इन स्विट्जरलैंड. द डिस्कवरी ऑफ DDT in what, in which country, Switzerland. Okay, in 1873 to 1939
डिनाइड बाय द पॉल एंड मदर। ठीक है, नाउ वी टेक द यूजेस ऑफ द डीडीटी, इसका इस्तेमाल देखेंगे हम यूजेस का। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एजेंट। यू नो इंसेक्ट, so to kill the insect the chemical will be act as insecticide, जो इंसेक्ट को किल करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, ये जो इंसेक्ट है उसको किल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीडीटी। इट इज यूज्ड एज व्हाट, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, सो इट इज किल द मॉस्किटो, इट इज यूज्ड एज टू किल्स द मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड बॉडी लाइस। व्हाट इज बॉडी लाइस? लाइस मतलब जुए जो होती है बेटा, बालों वगैरह में जो हेयर में जो ब्लैक कलर की जो जुए होती है उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोथेन का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज क्या है, फर्स्ट इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड बॉडी लाइस। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर नेक्स्ट यूज ऑफ दिस DDT, it is used for to controlling the malaria and typhus or typhoid। अगर इसका यूज करके हम लोग इस केमिकल का थोड़ा सा यूज करके हम लोग मलेरिया को और व्हाट टाइफस को यूज नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब हम लोग घर के अंदर अगर DDT स्प्रे करते हैं तो हमारे घर के अंदर मच्छर वगैरह जो होते हैं, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, जिससे अलग अलग बीमारियां होती है। जैसे आपको पता है मॉस्किटोज कौन सी बीमारी होती है, the mosquitoes causes a malaria, you know these are different types of malaria जो अपनी बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, the bacteria plasmodium vivax जिसका बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो अगर मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, कैसे स्प्रेड होता है, मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो को किल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, DDT एज अ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ओके। नाउ एनवायरमेंटल इफेक्ट, अगर इसका ज़्यादा यूज हुआ तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पर, हमारे एनवायरमेंट पे, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ DDT। क्लियर? नेक्स्ट हियर द हाई डोज ऑफ DDT मे कॉज द वोमिटिंग। अगर इसका ज़्यादा यूज हुआ हमारे घर के अंदर या हमारे जो भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत वगैरह जो होती है तो उसका स्प्रे देती है पाइप पे गटर वगैरह को मारने के लिए। देखिए आपको व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसका कलर जो व्हाइट होता है थोड़ा सा लाइट कलरलेस भी होता है, स्प्रे करते हो काय के लिए, मॉस्किटो को फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाई डोज ऑफ DDT अगर ज्यादा यूज किया मे कॉजेज वोमिटिंग एंड ट्रेमरस और शिकनेस, यानी अगर ज्यादा यूज किया तो हमारे बॉडी में इसके एडवर्स इफेक्ट, वोमिटिंग वगैरह होगी, हेडेक होगा, थोड़ा वीकनेस लगेगी। ठीक है, इट इज आल्सो इफेक्ट ऑन लीवर एंड रिप्रोडक्शंस। इसका ज्यादा, क्योंकि ये जो होता है, ये जो केमिकल है वो डायरेक्टली हमारे फैटी टिश्यू जो है, तो फैटी टिश्यू में क्या होता है, स्टोर होता है, वहां जाके वो रुक जाता है और उससे क्या क्रिएट करता है, इट डायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट ऑन व्हाट, लीवर एंड रिप्रोडक्शंस। क्लियर? आगे इट इज रेजिस्टेंस टू मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप मेटाबॉलिज्म में टेक हियर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब क्या मेटाबॉलिज्म है। तो ज्यादा अगर इसका यूज हुआ तो ये बॉडी के अंदर जो है वो ऐड होकर, ओके, बॉडी में वो ऐड होकर जो है क्या करेगा, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा। अगर मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया तो बॉडी की जो वर्क करने की जो अलग अलग जो मतलब पार्ट है वो वर्क नहीं कर पाएगी, या वर्क करेगी एडवर्स करेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, डिसेंट्री वगैरह हो सकती है, ये इसका इफेक्ट है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इट स्टोर इन द फैटी एसिड, इट इज बैन ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट। लेकिन अक्सर जो है कई कंट्रीज में इसको बैन किया गया है, खासतौर से इन 1973 में बैन इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट जो होती है यूएस में इसको 1973 में बैन कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो है इसका यूज अलग अलग कंट्री में हो रहा है। साइड इफेक्ट भी है उसका और इफेक्ट भी है, यानी उसका यूज भी है और मिसयूज भी है। ज्यादा अगर यूज किया तो साइड इफेक्ट है, और एक पर्टिकुलर मतलब अमाउंट में अगर यूज किया तो उसका क्या होता है, यूज भी होता है एज अ इंसेक्टिसाइड। विच केमिकल, DDT, नेम इज कॉल्ड एज डाइफिनिल ट्राइक्लोरोथेन। क्लियर? ओके, इट्स अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द DDT, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है और इसके यूजेस और इफेक्ट।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन इज हियर, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन आर विल बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यानी किस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीशन करता है उसका डू यू नो, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ CFC ऑन ओजोन डिप्लीशन और हाउ द ओजोन डिप्लीशन बाय CFC, यानी CFC का यूज करके हम लोग ओजोन डिप्लीशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है व्हाट इज द इफेक्ट और हाउ द what chlorofluorocarbon are what destroy the what ozone depletions. So we take the reaction here. First, the freon or chlorofluorocarbon or tri means 3Cl trichlorofluorocarbon when its contact and will be effect on a UV light. So in this the bond in between the F and Cl break, one Cl will be break down and we get a formula CFCl. पहली रिएक्शन क्या हो रही है कि Cl तो 3 है, यहाँ का एक Cl लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है इससे डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो रहा है और Cl एटम लॉस हो रहा है. Now this Cl atom is very effective or very reactive. So this Cl is reactive O3 is called what here? Ozone. So this ozone is react with Cl reactive molecule. So this Cl is break the O3 molecule into O2. ये Cl to O3 से क्या कर रहा है, O2 में कर रहा है. O2 is called as oxygen. Which oxygen? Dioxygen. And what we get, the O2 is removed and one O attached to Cl. What we get? ClO. ClO is also called as a one reactive compound. बहुत ज़्यादा reactive compound होता है. ठीक है. So further this Cl2 is what? Chlorooxygen is a reactive compound, unstable compound. So this chlorooxygen is reactive further the oxygen atom. What here? Further the oxygen atom. ठीक है. So what we get? Now further these ClO bond are break. The oxygen attached to oxygen. What we get? O2 and Cl are lost. Okay. So in this way the ozone means O3 molecule change into O2. So O3 is called as ozone and O2 is called as dioxygen. इस तरीके से अगर ओजोन ब्रेक होता है by using what here CFC और फ्रीऑन और ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अगर एक बार ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ तो उसकी लेयर थिन हो जाएगी. तो हमको जो एक्चुअली व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ओजोन लेयर आर वेरी वी कैन से दैट एडवांटेजेबल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. जिसका जो यूज है ओजोन लेयर का इज लाइक दैट ऑफ अम्ब्रेला, यानी जो हार्मफुल रेज है हमारी यूवी लाइट जो होती है वो जो कहाँ से निकलती है, सनलाइट से निकलती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी इट इज एक्ट एज प्रोटेक्टिंग एजेंट फ्रॉम द यूवी हार्मफुल यूवी लाइट टू अस. ठीक है. ओके. तो अगर हमने ज़्यादा फ्रीऑन का यूज़ किया तो यहाँ पर क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन होगा और इट कॉजेज सुनामी. अगर ओजोन डिप्लीशन होता है तो सुनामी आ सकती है, या ग्लेशियर्स पर जो आइस है उसको वो जो है तो मेल्ट हो सकता है, और उसके बहुत अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं. कब इफ यू यूज एक्स्ट्रा यूज और एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्रीऑन ऑन व्हाट ओजोन डिप्लीशन. सो ओजोन इज अ एलोट्रॉफ ऑफ ऑक्सीजन. यू नो एलोट्रॉफ, व्हाट इज एलोट्रॉफ? एलोट्रॉफ मींस अ कंपाउंड व्हिच हैव द व्हाट इज एलोट्रॉफ? Allotrophs are compound which have the same chemical formula, same chemical property, but different physical property called as ozone. O3 is gas, O2 dioxide is a gas, whereas ozone in three form: solid as well as liquid as well as gas. ठीक है. So we discuss here the what last topic of human unit is called as the polyvalent compound uses and its a side effect. How to use and what is use of this given compound and side effect. Okay. Now last we take the what is the effect and how to destroy the ozone depletion by CFC or freon. फ्रीऑन का यूज करके या CFC का यूज करके हम लोग कैसे ओजोन की लेयर को ब्रेक करते हैं. आपको पता है ओजोन लेयर कहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है. ठीक है. तो उसको हम लोग
काय का यूज करके CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करके रिएक्शन करके इस तरीके से हम केमिकल इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर बेटा आपका यूनिट फिनिश हुआ, यहाँ पर आपका यूनिट फिनिश हुआ। और अब आपको जो भी क्वेश्चंस है तो पर्सनली अगर आपको समझ नहीं आता तो कांटेक्ट करें। पूरा यूनिट यहाँ फिनिश हुआ, A to Z पॉइंट हमने यहाँ पर फिनिश किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करनी है, और नोट्स में अगर प्रॉब्लम जाती है आपको तो मुझे पर्सनली कॉल करना है। ओके, इजी यूनिट है और ये एग्जाम के अंदर 5 to 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस के आते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।